नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नामग्याल जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। प्रदीप जी और मैं हम दोनों हैं नेशन नाउ पर। आप सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। और आप सबको अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, वाणकम, शलोम, चाइनीज में नहीं आओ, जापानीज में konnichiwa। प्रदीप जी, Abaru Yako Jambo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. wherever they speak Swahili, absolutely wonderful. Very shortly we'll also greet you in French and of course in German, very shortly, and Spanish of course. And my apologies for the fact that I'm appearing now after almost 3 days, and but then most of the people I know in Mumbai, Pradeep ji, the people are not feeling well. Why is that? I mean, There's kind of sickness in the air. And yes, people are feeling sick. It's like terrible. Yes. Considering all the sick incidents which have been happening all over the country, naturally, people are feeling sick. You know, something in Muzaffarabad, something in Bangalore, something somewhere else. And today, that thing in Thane. मतलब दिल दहला देने वाली बात है सर, बदलापुर में। मतलब ये क्या है? छोटे छोटे बच्चे अगर सेफ नहीं है, I mean, you need to take care. I mean, the system has to take care of itself in every step. Every step. You can't even give a minute or 1 hour of relaxation and things like this happens. प्रदीप जी, बच्चों को जब पेरेंट्स जो हैं, माँ बाप जो हैं, स्कूल में छोड़ के आते हैं, Exactly. वो ये समझ के आते हैं कि बच्चे हमारे सुरक्षित रहेंगे वहाँ पे। Yes, yes. और ये हो रहा है, मतलब मेरी तो समझ के बाहर है। वो कोलकाता का जो रेप है, वो तो मतलब किसी को समझ में ही नहीं आ रहा असल में हो क्या रहा है ये। Is this, by the way, is this the beginning of the downfall of the Mamata Banerjee government? What is going on over here? This is terrible. मतलब आपने पहले ये कोशिश की दिखाने की कि भाई ये आत्महत्या है, that this is a suicide। उसके बाद पब्लिक प्रेशर की वजह से ना जाने क्या कुछ हुआ। पर I hope the resident doctors and other people who are on strike everywhere, I hope they listen to the Supreme Court and they come back to work. That's the only thing one can hope for. I really hope it happens. Supreme Court has really pulled up the Mamata government. I mean, any government, we talk about not only Mamata government, any government that tries to, you know, now the very fact that 2-3 चीज आपने कहा कि वो principal को जिस प्रकार से to a new college and there she was given promotion. I mean, was it required at this particular time? When some big incident like this has happened, he could have been sent on leave. That yes, principal that's could have it. been sent on leave कि भाई Exactly. छुट्टी पे चले जाएगी, क्या है मतलब। तो ये मेरी समझ के बाहर है। और प्रदीप जी, सबसे वाहियात बात क्या है, ये हर बार हो रहा है। आप जैसे हाथरस का इंसिडेंट देखें 2020 में, वो दलित लड़की थी बेचारी को, मतलब उसको रेप हुआ, उसके बाद उसका कत्ल हो गया। और मेरी समझ में, दिस इज ऑफ कोर्स माय ओपिनियन, आई मे बी कंप्लीटली रॉन्ग, क्योंकि दलित लड़की थी, शी वाज नॉट फ्रॉम द अपर मिडिल क्लास, नॉट अ प्रोफेशनल, so no candlelight marches for her, nothing for her, nobody even knows her name, that's it। crimes against women, crimes against women। प्रदीप जी, उन्नाव का रेप केस देख लीजिए, बिल्कुल सर। अंकिता भंडारी वाला रेप केस देख लीजिए। मतलब ये क्या हो क्या रहा है, मेरी समझ के बारे। बट एज फार एज दिस पर्टिकुलर थिंग इज कंसर्न, ये तो दिल दहला देने वाला है। मतलब ये जो हुआ है यहाँ पे, and what has happened in Badlapur is, it's absolutely terrible. What is going on over here? Now, this is happening where schools have to be really absolutely every step they have to take absolute security, safety precautions, and especially among the small girls, kids that are going out in schools. Are they really protected? Is the security around them? Suraksha. Right from Prime Minister कल से बोल रहा है कि महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण. But is it happening at the lower level, at the most tiniest level, the last level down, last person down there? Are they feeling safe? If they're not feeling safe, have the government created? Why do you want the Supreme Court to give you instructions on how to create safety in every level, in school level or the most smallest municipal school levels? You need to have inbuilt security out there. कुछ system तो होना चाहिए कि without which you cannot. तो इस चीज का क्या? एक बार बच्चे जो हैं, एक बार स्कूल में हैं, तो मैं और आप ये जानते हैं कि हमारे बच्चे जब स्कूल में होते थे, वो सुरक्षित हैं साहब, वहां पर कुछ नहीं होगा उनको। अगर वहां पर भी सुरक्षित नहीं है तो आप क्या चाहते हैं कि जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप जो हैं, वो स्कूल में बैठे रहें? मतलब ये क्या है? In any event, we've got Mr. Ali Daruwala from the BJP with us and Mr. Gopal Tiwari from the Congress, both from Pune at the moment, right now with us. Ali Daruwala साहब नमस्कार।
नमस्कार प्रदीप जी, नमस्कार राजीव सर, गोपाल सर, आपका स्वागत है। गोपाल तिवारी जी नमस्कार। 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 I think Ali Daruwala साहब has just taken over the show. Ali Daruwala साहब is now the Yes, anchor of the yes, show. sir. जी, क्या बात है सर, क्या दारूवाला साहब पहले आप सर ये क्या हो रहा है? You heard what we were talking about. What is going on? Why are there so many crimes against women, against little girls? I mean, has something gone wrong with us as a society? What is going on here? I mean, forget about the politics of it. Forget about everything else. What are we doing? What kind of people are we raising? How can you sexually assault a 4-year-old? I mean, I can't wrap my head around that. How is that possible? Daruwala sahab, pehle aap, please. Exactly, Rajiv sir and Pradeep sir, I am short of words, in a state of shock. I can assure you, I have 2 daughters myself, and an incident like this comes in front of you. I really feel, as you said, forget politics, forget I'm a spokesperson for BJP. I feel the law should not wait for the court verdict. The culprit is in your custody, and I think the most severe punishment should be given. It should send shivers in the mind of the people who even dream of doing something like this. I can assure you, Hang I the don't bugger. think these people are in Hang their him. frame of mind. Hang Yeah, him. exactly. Exactly. I cannot use such strong words, Well, I can. but I'm sure my sentiments are put across on this prestigious channel of yours. Me, as Ali Daruwala, I feel that the severest of stern action should be taken, and time should not be wasted for getting justice in judiciary. It's really waste of time. और गोपाल तिवारी साहब, This मैं आपसे punishment, पूछना चाह रहा one हूँ। second, one second. जी जी This बोलिए सर, punishment given to them should send shivers in the spine of culprits and their family members. गोपाल तिवारी साहब, अब बदलापुर स्टेशन के अंदर लोग जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं अभी, लोगों का जो आंदोलन चल रहा है, बड़ी मुश्किल से पुलिस ने अब जा करके लोगों को रिक्वेस्ट किया है, लोग शायद वापस जाने शुरू हैं। प्रदीप जी, I think Yes, they are sir, going sir. back now. अभी वापस जाने वो शुरू Police हो रहे action हैं। has evicted the entire. अब वो क्या है कि लोगों में फ्रस्ट्रेशन है साहब, सीधी सादी बात है। कई लोग मतलब ये जरूर पूछेंगे कि यार क्राइम इधर हुआ है और तुम लोकल ट्रेन को तुम पत्थरबाजी क्यों कर रहे हो, ट्रेन में तोड़ फोड़ क्यों कर रहे हो। मैं मानता हूँ नहीं करनी चाहिए, लेकिन लोग बड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं। लोगों को क्या है कि ये हो क्या रहा है। गोपाल तिवारी साहब आप बताएं, मतलब ये भारत के अंदर किस प्रकार के समाज को हम जन्म दे रहे हैं। गोपाल तिवारी साहब, हर जगह पे आप देखें बलात्कार का इंसिडेंट, बेंगलोर में बलात्कार का इंसिडेंट, कलकत्ता में बलात्कार का इंसिडेंट, यूपी के हाथरस में बलात्कार का इंसिडेंट, अभी मुजफ्फरपुर में वहां पर भी एक डॉक्टर ने नर्स के साथ बलात्कार कर दिया। उत्तराखंड में एक नर्स वापस आ रही थी घर में, बेचारी उसको बलात्कार करके उसको मतलब उसका भी कत्ल कर दिया। ये क्या हो रहा है गोपाल तिवारी जी, प्लीज बताएं आप। जी राजीव जी और प्रदीप जी, आपने बहुत ही बर्निंग इशू लिया है, और अली दारूवाला जी का भी मैं सम्मान करता हूं एज ए ह्यूमन ग्राउंड पे। उन्होंने जो अभी कहा बिल्कुल सही है। हमें इस तरफ पॉलिटिक्स के आगे जाके बढ़ के भी देखना चाहिए ह्यूमन ग्राउंड पे। आज हमारे दिवंगत पंतप्रधान राजीव जी गांधी जी की जयंती है, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण सही मायने में 33% उनको कोटा देके दिया था कि अगर वो राजनीतिक डिसीजन में आते हैं लोकल बॉडीज में वगैरह, तो उनका सही मायने में सशक्तिकरण होगा, और उसी के कारण उनका मॉरल बढ़ेगा। लोगों में एक मॉरल मतलब एक मॉरल ये आएगा कि भाई हम महिलाओं अगर राजनीति में आगे आती है तो थोड़ा सा एक मॉरल उसके ऊपर कंट्रोल आएगा। ऐसा ये सभी बातें हैं। अगर अभी देखा जाए तो निर्भया केस में जब ये हुआ था, तो आपने पूरा भारत देश उसमें कई मोर्चे निकले थे। उस समय इसके खिलाफ, रेप के खिलाफ और कुछ बातें में सख्त कानून बनाए गए थे। उसको बाहर देश में जाके खास प्लेन से उसके ऊपर इलाज करवाया था।
और गवर्नमेंट की जो विल पावर दिखनी चाहिए पूरे देश की जनता को कि भाई एक बच्ची के साथ इतनी जाती हुई है, बस में रेप हुआ है, तो कहां तक हम उसको जाके बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी एक मैसेज जाना चाहिए। हमारा एक मॉरल ड्यूटी है गवर्नमेंट का। और उसके बाद हमने सांसद ने सख्त कानून किया है। अभी कानून करने के बाद कानून का इम्प्लीमेंटेशन करना हर एक स्टेट के ऊपर है, डिपेंड है। मैं पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं जाता हूँ, ह्यूमन ग्राउंड पे बात करता हूँ वापस। अगर यहाँ पे देखा जाए तो इन लोगों की ऐसा कोई डर है समाज में या नहीं है, मतलब शॉकिंग। ये कहाँ जा रहा है भाई? कल किसी की भी बहन, माँ, बेटी किसी की भी हो सकती है। जो कुछ चल रहा है तो उसके प्रति समाज में एक डर कहीं पे भी नहीं है। हाथरस में देखा जाए तो रात को उसको शव नहीं दिया जाता, जला दिया जाता है, और कई सारे। अगर हम इसके ऊपर कब एक्शन लेंगे? अगर हमारी ये जो फोगाट है उसको अभी वो कितनी डिमोरलाइज हो गई थी सर, मतलब उसके प्रति हमने कितना एक्शन लिया, हम गवर्नमेंट कितना सेंटिमेंट के हिसाब से हम उनके साथ बर्ताव करते हैं। मणिपुर में क्या क्या हो रहा है, फिर भी वापस हमारे अली जी बोलेंगे आप राजनीति करते हो। ऐसा नहीं है, हमारी एक मॉरल ड्यूटी है समाज को सुरक्षा देने की। गवर्नमेंट हैज टू गिव एश्योरेंस, गिव कॉन्फिडेंस टू पीपल। गोपाल तिवारी जी, बीजेपी का ये आरोप है कि इंडिया अलायंस एंड द कांग्रेस इज सॉफ्टवेयर। आपके जब पार्टी इंडिया अलायंस के स्टेट रूल स्टेट है, वहां पर योर सॉफ्टवेयर क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन इज कंसर्न्ड। प्राइम मिनिस्टर मोदी का कहना है कि वी ऑल हैव टू वर्क टुवर्ड्स सुरक्षा एंड सशक्तिकरण ऑफ महिला जो बहन है हमारे। तो आर यू रियली सॉफ्ट वेयर ममता बनर्जी है, you can say India Alliance वाले स्टेट है, वहां पर क्या राहुल गांधी जी सॉफ्ट है और कंडेमिंग इंसिडेंट्स अगेंस्ट क्राइम्स ऑन वुमेन? गोपाल तिवारी जी, नहीं, ये नहीं हो सकता सर। सॉफ्ट कैसे हो सकते हैं हम? अगर इसके प्रति देखो सख्ती बरतनी चाहिए तो बरतनी चाहिए हम। और अगर हमने भी उसको प्रोटेस्ट किया, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया है, हमने निषेध किया है। ममता बनर्जी जो सीएम है खुद उसके खिलाफ मोर्चे निकल रही। तो ये सब बातें बिल्कुल सख्त से निपटानी जानी चाहिए। एक सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक डर चाहिए वो कहाँ दिख नहीं रहा। फिर ऐसे क्यों नहीं हो रहा है सर? ये अगर एक मॉरल ड्यूटी है तो वो मॉरल ड्यूटी वी हैव टू फुलफिल दैट मॉरल ड्यूटी। Right, let's bring in Ali Daruwala साहब on this. Ali Daruwala साहब, by the way, क्योंकि गोपाल तिवारी जी ने विनेश फोगाट का नाम लिया, अब मैं आपको बता दूं, एक तो आज 20 अगस्त है, जयंती है राजीव गांधी जी की। He was a very dear friend, by the way, lovely man and really a very very good prime minister, very frankly speaking, and possibly one of the most courteous and civilized men you will ever come across. रियली एंड ट्रूली स्पीकिंग, मतलब इतने ज़्यादा तमीज़ और तहजीब वाले शख्स को मैं आज तक कभी मिला नहीं हूँ जैसे राजीव गांधी हुआ करते थे। बट दैट्स अ सेपरेट इशू। आज क्योंकि विनेश फोगाट जी का नाम लिया गया, 2018 में एशियन गेम्स में विनेश फोगाट बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन अ रेसलिंग गोल्ड मेडल। 6 साल पहले, आज ही की बात है, 20 अगस्त को, क्योंकि इन्होंने विनेश फोगाट जी का नाम लिया, इसलिए मैं, बिकॉज इज नॉट रियली रेलेवेंट टू द केस, टू व्हाट वी आर डिस्कसिंग। बट अली दारूवाला साहब, इज इट ट्रू, डू यू हैव अ फीलिंग, आपको फीलिंग है कि राहुल गांधी साहब और बाकी जितने भी, जैसे अखिलेश यादव जी हो गए, बाकी सब लोग हो गए, क्या ये लोग जो हैं कलकत्ता को लेकर के बड़े सॉफ्ट हैं, मतलब जितना मिलिटेंट होना चाहिए उतने नहीं है? अली दारूवाला साहब, So, being very pragmatic and just talking about what I see, what I feel, and what the information has been spread on social media, that when an incident happened in West Bengal, none from the India Alliance went over there. We did not see any one of them removing a candle march. We did not see Rahul Gandhi rushing over there. Had this happened in a state where there is a BJP government, but anyway, Rajiv sir and Pradeep sir, I'd like to say, let us go beyond politics, beyond the blame game. The most funny part was Mamata Banerjee leading the agitation, leading it from the front. In fact, and on the other hand, she was covering up the accused, not letting the law take its course. The burning issue, I can assure you today on Nations Now platform, the overturning of West Bengal has begun.
this woman who has lost her life is going to bring a turnaround in this nation. What is happening? Time and again I told you, West Bengal is the gateway of crime. Whatever is happening in our country, what you're seeing in Thana, in parts of the country, are these Bangladeshi immigrants who have come in, and we are creating this havoc all over the country. And I can tell you with full responsibility, Rajiv sir, Pradeep sir, Gopal ji, आप भी सुनिए, ये जो देश में जो क्राइम हो रहा है ना, ये आपको, मेरे को, एक में को ब्लेम करके नहीं होगा. इसका जो मूल कारण है ना सर, वो वेस्ट बंगाल है, जो बांग्लादेश से वहां से जो मिलिटेंट्स घुस के यहाँ पर आए, अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए, जो कोई, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, आप अच्छी तरह जानते हैं कौन लोग हैं, इनके वोट से जीत के आना, ये जो इन्होंने ये जो एक मर्डर किया है ना, इंसानियत का मर्डर, ये लोग को सजा देना पड़ेगी, इनको सजा मिलेगी. बट बिफोर दैट, जो हम लोगों के ऊपर, हमारे भाई बहनों पे जो रास्ते पे अत्याचार होने वाले हैं, जो चोरी हो रही है, मैं आपको डंके के चोट पे बैठता हूँ. ये जितना पटारी वाले, ये जितने भी वेंडर्स, हॉकर्स, बेगर्स आपको जो दिख रहे हैं ना साहब, ये सारे बांग्लादेशी है सर. ये अपने इंडिया में घुसे. आप इसको शूट ऑन साइट जब तक आप करेंगे नहीं ना सर, लॉ एंड ऑर्डर नहीं आने वाला है. एक्सक्यूज मी दारूवाला साहब, यू टॉक समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. आप बहुत इंटरेस्टिंग चीज कर रहे हैं कि ममता बनर्जी टेकिंग अ मोर्चा एंड शी इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. नाउ इज देयर समथिंग टू हाइड? आपने इस चीज को लिया कि ममता इज रूलिंग द स्टेट, शी इज द चीफ मिनिस्टर, और वो अगर जुलूस और मोर्चा और ये सब लेके जाएंगे तो बात है कि हु इज गोइंग टू प्रोवाइड जस्टिस? दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू हाईलाइट. हाउ कैन ममता बनर्जी? Now, what are you trying to say? That there's a hide up, there's a cover up? It's a joke. Just imagine, are we so stupid? Like what is happening in the Badlapur station, if Honorable Devendra Fadnavis is leading the mob and asking for justice, sir, you would die of shame, you will hang yourself. Like Devendra Fadnavis is leading the agitation at Badlapur station. He's the man who's supposed to protect us. He's the man who's supposed to give us justice. He's the man who's supposed to take action on these people. Instead of doing this, if he's leading a protest, wouldn't people laugh? I said, what have we voted you for? Do not do this shit politics what Mamata Banerjee is doing. Okay, coming to trying to control myself over here, I feel in the same breath, I would like to tell Pradeep sir, Rajiv sir, please listen to me carefully. As you said, what needs to be done, what is happening, ये कॉफी टेबल के ऊपर या OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर डिस्कस करके कुछ नहीं होगा. वही करना है जो योगी आदित्यनाथ जी करते हैं. ये जो कल्प्रिट्स है, ये जो लोग हैं जिसने ये कांड किया है, उनके घर में बुलडोजर चला, उनके खानदान को आप लोग उद्ध्वस्त करो, जब जाके इनके ऊपर सर शिक्षा का और कायदा सुव्यवस्था का इनके ऊपर दबाव गिरेगा. व्हाट योगी जी डज, आई एंडोर्स इट एंड आई एंडोर्स इट विद फुल रिस्पांसिबिलिटी. गोपाल तिवारी जी, ये क्या है जो दारूवाला साहब कह रहे हैं कि अपने ही सीएम, अपने ही गवर्नमेंट के खिलाफ क्या है मोर्चा लेना जायज है? हाउ यू गोइंग टू जस्टिफाई इट गोपाल तिवारी जी? ये क्या चल रहा है? आप एलिगेशंस ऑफ कवर अप प्रिंसिपल को आप अकोमोडेट करेगा, प्रिंसिपल को आपने प्रोटेक्ट किया, कौन आया है, इंसिडेंट्स ऑफ गैम में हुआ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पुल्स अप, इतना लेट क्यों हो गया एफआईआर? तो ये सब क्या चल रहा है? और सीएम ममता जी खुद मोर्चा लेके जा रहे हैं, किसके खिलाफ लेके जा रही है गोपाल जी? Sir, I want to bring it to your kind notice that CBI has been directed by court. Central government didn't do anything by their own. CBI को जब क्यों किया इन्होंने नहीं किया सर? ये तो कर सकते हैं ना, सीधी बात है. CBI has been given direction by court. आपने सबने पेपर में पढ़ा होगा. सेकंड थिंग, अगर आप अली जी भाई अगर बोलते हैं पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए और योगी जी का ये अगर एग्जांपल देते हैं, तो महिलाओं के क्राइम रेट हाईएस्ट किसमें? यूपी में तो है. और क्या कर रहे हैं आप? किसके ऊपर बुलडोजर घुमा रहे हैं सर? और इसके जाके अगर बांग्लादेश के घुसपैठी बोल रहे हैं तो आपका मॉरल भी तो चाहिए. अभी विनेश फोगाट के साथ कौन से बांग्लादेशी घुसपैठी आए थे? उन्होंने तो सीधा सीधा आरोप लगाया था और वो आपने उसको विपिन उनके लड़के को टिकट दिया. और जब महिला राष्ट्रपति हमने अपील की तो महिला राष्ट्रपति को सत्यपाल मलिक अगर एक गवर्नर भी नहीं मिल सकते तो महिला राष्ट्रपति कंट्रोल बाय पीएमओ.
ये देश में क्या चल रहा है सर? अगर सत्यपाल मलिक अगर महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं मिल सकते हैं, तो कोई भी आदमी का क्या मॉरल होगा उनको कि हम भी जाके किसके पास कंप्लेंट दें? तो ये सब बातें हैं। अगर आप यूपी का दुहाई दे रहे हैं, तो मोदी काल में ये सेनगर जो एमएलए था या यहाँ पे कुलदीप वो आज सेंगर, तक उन्नाव जी। कुलदीप सेनगर, ये कौन थे सर? इनके ऊपर कौन सी कड़ी कार्रवाई हुई है ना ये सर? तो कुलदीप बताइए सेंगर ना। जेल में है ना सर ये तो अभी? ब्लेम गेम नहीं करना बोलते हैं। आई एम आल्सो एग्री, लेकिन इट इज लेकिन नॉट गोपाल तिवारी जी, कुलदीप सेंगर साहब जेल में हैं अभी, जेल में है ना। देखो सर, इनके साक्षी महाराज क्या बोलते हैं? और अरे तो जो राम रहीम को जब छुड़ा है, उसके भक्त लोगों ने ये किया, तो ये साक्षी महाराज उसका जस्टिफाई करता है खुलेआम। तो ये कौन सी तौर तरीका है भाई? बट यू सपोर्ट ममता बनर्जी, उसमें क्या कमेंट करोगे गोपाल जी कि ममता बनर्जी सीएम होके खुद मोर्चा लेके जा रही है? किसके खिलाफ लेके जा रही है? सीबीआई अपने खिलाफ, अपने खिलाफ कि सीबीआई के खिलाफ? क्या है? हाउ डू यू जस्टिफाई दैट? किसी को कैसे, बीइंग अ पार्ट ऑफ द इंडिया अलायंस, हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट? हमने तो उसके कंडेम किया है कांग्रेस पार्टी ने, और उसके खिलाफ हम भी आवाज उठा रहे, प्रोटेस्ट भी कर रहे, सब जगह कर रहे। कल पुणे बंबई में हमारे डॉक्टर सेल ने उसके खिलाफ कर रहे, पूरे देश में हम कर रहे। तो अभी ये छानबीन करना किसका अंदर है? इट कम्स टू अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। उन्होंने ये सब करना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी, उनको एक्सपोज करना चाहिए। अगर सीबीआई को डायरेक्शन देने की नौबत अगर कोर्ट पे आती है, तो इतना सब होने के बावजूद फिर आपके होम मिनिस्ट्री क्या करती है सर? ये तो उन्होंने खुद जाके सुमोटो एक्शन लेना चाहिए तो था गोपाल ना। तिवारी ये जी, सीधी बात है। गोपाल तिवारी जी, अब वैसे ये बात भी है कि राहुल गांधी जी ने इंसिडेंट को कंडेम ही नहीं किया है, साथ में ये भी कहा है कि कानूनी स्थिति जो है वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, उसकी वो बहुत चिंताजनक है। उसके ऊपर ममता बनर्जी ने बुरी तरह अटैक भी किया राहुल गांधी को। लेकिन अली दारूवाला साहब, आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन। दारूवाला साहब, I can see he's talking on the phone. Thank you very much, Satish ji, for coming to the office. So nice of you. Daruwala Sahab, can you hear me, sir? We can hear you. Daruwala Sahab, can you hear me? Daruwala Sahab, can you hear me, sir? Can you say something? Well, I can see. Yeah, Daruwala Sahab, we can hear you now. Can you say hello or something like that? Yeah, sorry. Yeah, I had just lost connection. Can you repeat the question? No, I haven't asked the question yet, Daruwala Sahab. Daruwala Sahab, Tell me. आपने अभी you talked about Yogi Adityanath ji, मुख्यमंत्री जी. It is absolutely true Correct. that he has moved against the mafia. He has finished off a lot of these dreaded criminals from Uttar Pradesh. Their houses were demolished and stuff like that. But let me ask you, sir, in Banaras, there were these two chaps of the IT cell of the BJP who were accused of sexually harassing, molesting and assaulting a girl for almost 2.5 months. FIR was registered against them. Now both of them are in jail, of course. And they were allowed to continue campaigning in Madhya Pradesh. मध्य प्रदेश के चुनाव के दौरान दोनों बीजेपी IT सेल के छोकरे दोनों के दोनों मध्य प्रदेश में चुनाव में लड़ रहे थे, तब कोई एक्शन नहीं हुआ उनके खिलाफ। जब समाजवादी पार्टी सड़क पर उतरी बनारस में, उसके बाद जाकर के इनके खिलाफ एक्शन हुआ। सर, उनके घर पे तो कोई बुलडोजर नहीं गया अभी तक, अली दारूवाला साहब। Exactly. It is highly shameful. And if an incident like this has happened, and it has happened with a person from my party, I personally condemn it. And if you let me know, Rajiv sir, to be very honest, it's a very big thing. It may have skipped my mind. I may have not been part of this debate, or probably I may not have been available that week, but I was traveling that time during election. But I can assure you, this is shameful. This bulldozer Raj, what I was telling you, it should उनके घर पर भी चलना चाहिए। अगर जी। नहीं चला है
तो योगी जी नहीं चला है, सर। ईमानदारी के ऊपर ये एक प्रश्न चिन्ह है। मैं आपके चैनल पे ये दावे के साथ कह सकता हूँ। नहीं चला है सर, नहीं चला है, नहीं चला है। महिला जी प्रदीप जी। महिला सशक्तिकरण, दारूवाला साहब, he says, मोदी साहब ने कहा है महिला बहनों का सुरक्षा, उनका सशक्तिकरण। बोले कि does the सशक्तिकरण help in stopping this kind of crimes? 1 करोड़ लखपति दीदी, मोदी साहब कह रहे 33% रिजर्वेशन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। अभी गोपाल जी कह रहे थे राजीव गांधी जी का आइडिया था 33% वुमन रिजर्वेशन। पीएम जो कहा कि पीएम आवास योजना में 70% जो वुमन को फायदा हुआ है, आवास योजना 4 करोड़ का जो घर मिले उनमें 70% वुमन को मिला है। 10.33 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस, 12 से 20 मैटरनिटी लीव जो इंक्रीज किया 26 वीक्स। ही सेज ऑल दिस काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स। प्राइम मिनिस्टर मोदी का कहना कि ये इनिशिएटिव्स लीड्स टू महिला सशक्तिकरण, अवेयरनेस, सुरक्षा। इज इट ट्रू दारूवाला साहब? 100% इट इज ट्रू। डोंट यू फील प्रदीप सर, राजीव सर, गोपाल जी भी मानेंगे ये बात को। ये जो हुआ है, बेशक मैं ये बात को मानता हूँ, इट वाज दैट जेंटलमैन, इट वाज दैट ऑनरेबल ह्यूमन बीइंग राजीव गांधी who came up, who even at least came up with the idea, with the thought that 33% reservation should be given to women. As Rajiv sir said, the most charming, the most gentleman human being was Rajiv Gandhi, who across party lines, I can assure you, I was not even a mature that time, I was not even an adult, but the admiration I had for Rahul Gandhi and his राजीव vision गांधी and सर, his राजीव गांधी। Rajiv Gandhi, वही बता रहा हूँ नहीं, sir, आपने Rajiv राहुल गांधी बोला। का जो sorry, Rahul Gandhi also is a good person. I always keep telling you on your channel, sir, he's not cut for politics. But You by said the way, he's that not, 33% protested. reservation. Probably that man doesn't दारूवाला know what साहब, is sorry to stop you, 1 second. That 33% reservation, और ये खास गोपाल तिवारी जी के लिए, वो जरा बाद में रिएक्ट करें उस पे। अली दारूवाला साहब, that 33% reservation was not allowed to be passed by guess who? By the Samajwadi Party. Sir, By the left Samajwadi was Party, about sir. Akhilesh and his father and Samajwadi Party, and let's not get into that debate. They are the spoke in the wheel. जो यूपी के अंदर जो बोल रहे थे ना सर, इतना हाई क्राइम रेट है, जो गोपाल तिवारी जी कह रहे थे सर, थोड़ा आप जरा हिस्ट्री जानिए। लालू प्रसाद यादव, ये मुलायम सिंह यादव क्राइम कैसा करते थे, कैसा लोगों के ऊपर अत्याचार होता था। बेशक है, खत्म नहीं हुआ, मैं झूठ बात नहीं कहूंगा कि यूपी के अंदर राम राज्य आ गया, कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ खुशल मंगल है। नहीं, वहां पे क्राइम रेट हाईएस्ट था इंडिया में। यूपी में रहना नामुमकिन था, मगर हल्लू योगी जी सच्ची ईमानदारी से प्रयास करके यूपी में सुशासन और डेमोक्रेसी और एक पीस लाने का प्रयास कर रहे हैं। लखनऊ तब का लखनऊ, आज का लखनऊ, यूपी तब का यूपी और आज का यूपी। आप मानेंगे गोपाल जी, क्या ये जो पॉलिटिशियंस है, ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन बिगिन विद, योगी आदित्यनाथ ये बहुत सच्ची ईमानदारी से यूपी को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। बेशक कुछ चीज और बची है, उसमें वक्त लगेगा सर। इस 60-70 साल का ये जो मैल है, ये एक दिन में धुल के नहीं निकलेगा। गोपाल जी बात यह है कि आपके इंडिया अलायंस से हमेशा प्रश्न लगाता है। राहुल गांधी जी स्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, बोले कि संविधान को हमको बचाना है। आज भी संविधान को बचाने के बाद राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं। बट आपके साथ जो लोग हैं, लाइक क्राइम्स अगेंस्ट वुमन, मुलायम सिंह जी का सबको याद होगा, उन्होंने एक बार कहा था कि वो लड़कों से गलती होती है, ये रेप होना नहीं चाहिए, इसको कन्वर्ट, यू शुड नॉट टेक इट एज रेप, इट इज गलतियां, he was trying to cover up for the kind of rape incidences where UP is concerned. और दूसरा है कि मुलायम सिंह एंड लालू प्रसाद यादव वर प्रोडक्ट्स ऑफ इमरजेंसी, जो बीजेपी कह रहा है कि संविधान हत्या जो आपने किया गोपाल जी। तो ये अनोखा अलायंस है, इंडिया अलायंस है, अनोखा अलायंस। आप एक दूसरे के खिलाफ भी थे और बेसिकली फंडामेंटल जो आपके डिफरेंसेस है वो डिफरेंसेस रहा है संविधान के हिसाब से, मगर आज आप सब साथ में आके तो कैसे चलेगा आगे गोपाल जी? हाउ डू जस्टिफाई मुलायम सिंह, लालू प्रसाद यादव, संविधान हत्या, कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हो इंडिया अलायंस इज कंसर्न? Sir, first of all, I would like to say that whatever he was talking about UP ruling party, Mr. Yogi Adityanath ji, and praising him about his well command on administration, and had it been so, the BJP wouldn't have lost so much seats in parliament. लोकसभा में इतने हार नहीं सामना करना पड़ता था, ये बात है। अगर आप
इतना अगर कहते हो तो ये बात ऐसी नहीं है सर। आप मतलब फैक्ट एडमिट क्यों नहीं कर रहे? कहाँ अब पिछले बार यूपी में तो कितने सांसद चुने गए थे, अब की बार कितने गए? अगर आप बिहार में क्या है, बिहार में आपके जो साथ में बैठे हैं तब आप अच्छे रहते हो, तब आपको कोई ये नहीं। अगर जब पार्लियामेंट में अगर अखिलेश यादव के बारे में और कांग्रेस इतना अगर ये कुछ रहता तो ये दूध का दूध पानी का पानी हो गया ना सर। अभी 3 महीने पहले की बात है। तो इट डजंट हैव एनी मीनिंग, आई थिंक सो। लेकिन तो गोपाल ऐसा तिवारी जी, कि इलेक्शन जीतना और क्राइम के खिलाफ लड़ना, ये तो दो अलग अलग चीजें हो गई ना। इसके सर, लिए नहीं दोनों सर, का क्या ऐसा संबंध नहीं, है सर? दोनों का क्या संबंध है? ये क्या है? सर देखो हाँ जी, बोलिए। अगर आप जस्टिफाई कर रहे हैं, अमित मालवीय आईटी सेल के जो उनके इंचार्ज है और वो आईटी सेल के जो बंदे, दो गाइस जो पकड़े गए बीच में, सुप्रिया सिनेट कांग्रेस के जो हमारी प्रवक्ता है उसने विद प्रूफ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ये सब बातें सामने लाई थी, बार लाई थी, 2-3 बार लाई थी। तो नथिंग वॉज हैपन ना। उसके बाद क्या हो रहा है, मतलब कुछ हो, लोगों को भी तो सर, अमित मालवीय जी इज फेसिंग केसेस इन वेरियस कोर्ट्स फॉर स्प्रेडिंग हेट एंड स्प्रेडिंग फेक न्यूज एटसेट्रा। ऐसी बात नहीं है, उनके खिलाफ केसेस हैं अलग अलग। नहीं सर अलग अलग है, लेकिन एज ए पार्टी विद डिफरेंस कहने वाली बीजेपी की जो शीर्ष नेतृत्व उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर? सर, पार्टी विद डिफरेंस कैसे हुई गोपाल तिवारी साहब? सॉरी, मैं आपको बार बार रोक रहा हूँ। पार्टी विद डिफरेंस कैसे की? सारे तो कांग्रेसी दिखते हैं बीजेपी में, सारे। मतलब आप देवेंद्र फडणवीस जी के आसपास देख लीजिए, सारे तो कांग्रेसी हैं। कौन है वहां पे? आप ये तो बताओ। आपकी पार्टी लग रही है मेरे को तो वहां पे। आज भारतीय जनता पार्टी को देखो, महाराष्ट्र में सारे तो आप ही के नेता हैं वहां। अब बोलिए, आप बोलिए, चलिए बोलिए। सर, यही तो हम कह रहे थे, ये पार्टी विद डिफरेंस हम नहीं दावा कह रहे थे, वो खुद दावा कर रहे थे, इसलिए बोल रहा हूं मैं कि वो हम कहाँ कह रहे थे, वो अपने आप को पार्टी विद डिफरेंस कह रहे थे ना। इसीलिए अभी महाराष्ट्र का क्राइम रेट देख लीजिए सर। जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई इनके, जब इनका जो त्रिकूट सरकार था, शिंदे, अजित पवार और इनका, तो और क्या चाहिए? सॉरी, जब अजित पवार नहीं थे, अजित पवार ने खुद बोला था कि हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को नपुंसक कहा करके, कि वो जो क्राइम रेट कंट्रोल नहीं कर पाई, राइट्स कंट्रोल नहीं कर पाई। और इनको फिर अभी देखो, ये तो छोड़ो, 14 से 19 का जो रूलिंग, एक सीएम रहने के बाद भी इनके सीट कम हो गए। अब की बार 200 पार करने वाले थे, 126 से 80-82 तक आए, और कांग्रेस राष्ट्रवादी इन लोगों को लेके 106 पे आए ये सर। तो अभी देखो, आज के तारीख में भी इनको दे डोंट हैव एनी कॉन्फिडेंस इन महाराष्ट्र। नहीं तो फिर अभी हरियाणा के साथ चुनाव तो जाहिर करना जरूरी था, बाय डिफॉल्ट करना था। 15 साल हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव एक साथ हो रहा है, ये कौन सा तरीका है भाई आपका? सर, उसके बारे में 2 मिनट के बाद बात करेंगे कि महाराष्ट्र का चुनाव जो है वो डिले क्यों कर दिया गया। सॉरी प्रदीप जी, आपको पूछना चाह रहे थे, लेकिन अली दारूवाला साहब से मैं पूछना चाह रहा हूं। दारूवाला साहब, अरे साहब क्या बात है, जब गोपाल तिवारी जी बोलते हैं आप अपना ईयरपीस निकाल लेते हैं, क्या चक्कर है? दारूवाला साहब, उनकी हर एक बातें सुन रहा हूं सर। ओके। सो दारूवाला साहब, यूपीएससी में जो लैटरल एंट्री अभी मोदी सरकार ने शुरू की थी, वो वापस ले लिए। They've just taken it back, one more U-turn. उसके पहले वक्फ बोर्ड का जो अमेंडमेंट था, जो आप लाना चाहते थे, 40 अमेंडमेंट वक्फ बोर्ड एक्ट में लाना चाहते थे, you have had to send it to the joint parliamentary committee. So what is going on? Have you lost your confidence? Ali So we Darwala have sir? definitely not lost our confidence. About the UPSC, I would not be in a position to answer because I'm not aware of the fact. But regarding the Waqf Bill Amendment Act, we have sent it to the JPC. It is a pure indication as to democracy is respected. If the parliamentarians wish, if the parliamentarians wish that there is a lacuna in this and it needs to be discussed, and it needs to be discussed threadbare, my party or anybody in power has not the power to pass something or bulldoze something as far as the Waqf bill is concerned.
Now, coming back, if you allow me, as you say, I'm taking over the show. No, I would not like to take over the show. I would like to bring to your notice one thing, Rajiv sir and Pradeep sir. Yesterday morning, there was a protest outside Honorable Uddhav Thackeray Saab's residence. And just imagine the mob that was present over there were all hundreds and hundreds of Muslims. And they were asking Uddhav Thackeray Sahab, क्या आप जो मुसलमान के मसीहा बन के आज महाराष्ट्र में उभर रहे हो, जब वहां पे वोटिंग का वक्त आया तो आपके जो 9 सांसद महाराष्ट्र से चुन के गए, वो सांसद में वो लोग पार्लियामेंट में एब्सेंट क्यों थे? यानी अगर आप नुमाइंदी कर रहे हो, जैसा गोपाल तिवारी जी बार बार कह रहे कि महाराष्ट्र में उनका इतना सीट बढ़कर आया, 9 सीट इनके, 8 सीट इनके, जो उनको 20 सीट्स प्लस मिले हैं, वो मुसलमानों के वोट से ये लोग वहां पर अच्छी विक्ट्री मार्क कर सके। मगर जब वक्त आया तो ये लोग भाग के क्यों गए? तो ये जो फेक नैरेटिव है क्या उद्धव ठाकरे ये मुसलमानों के नेता है, ये आप एक्सपोज हो गया। They were just doing it for the sake of politics, for the sake of votes. अभी आने वाले विधानसभा इलेक्शन में आप देखेंगे मुसलमानों को जो इन्होंने बेवकूफ बनाया, अब मुसलमान जाग उठा है। बीजेपी मीठी मीठी बातें मुसलमानों के लिए नहीं करता, मगर जमीनी तौर पे मुसलमानों के लिए वो एक्शन मोड में जो भी यहाँ पे स्कीम्स रोल आउट होते हैं उसको फायदा मुसलमानों को होता है। but sir, उद्धव ठाकरे जी मुसलमान और सिख ईसाई की सारी औरतें हमारी बहन है। ये लेकिन सर अली दारूवाला साहब, बट उद्धव ठाकरे जी ने ये कहा है कि कोई भी वक्फ की जमीन या कोई भी मंदिर की जमीन मैं सरकार को हड़पने नहीं दूंगा। He said. हड़प कौन रहा है साहब? So he said, I will not allow anybody to grab But who is the eating waqf the land. land? What nonsense is this? That's what he said. He may say anything. That is what he's giving lip service. Exactly. वो Okay. सिर्फ जबान से बात गोपाल करते तिवारी हैं। जी। जब वहां पे एक्शन का वक्त आ गया तो इनके सारे 9 सांसदों को एब्सेंट रहने को कहा, यही उद्धव ठाकरे ने। इसका जवाब मांगिए ना सर आप। जी बिल्कुल, बोलिए गोपाल तिवारी जी। Sir, Ali Bhai is telling that they have made an appointed JPC. I would like to say that No. We they did not had to appoint. do. It was sent to the JPC. It was the demand of the parliament, Gopal sir. It was a demand of the opposition party. जी सर 10 साल में कई डिमांड हो गए सर जेपीसी के बारे में, लेकिन अब के बार दे हैड टू एक्सेप्ट, दे हैड टू अपॉइंट द जेपीसी, उनको करना पड़ा सर। Exactly. ये फर्क 1/3 of the है। land in India belongs to the Waqf board. यस सर, बिल्कुल। जो भी देवस्थान की जमीन है, जो भी है, वो बिल्कुल नहीं करना। उसके साथ साथ ये भी मैं कहता हूँ, मस्जिद और मंदिर मस्जिद जो भी देखो, जो भी चर्च हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, जो देवस्थान की डेडिकेटेड जमीन है, अभी जेपीसी अपॉइंट हो गई तो उसमें सारा निकल आएगा ना। कोई जल्दबाजी, जो भी आएगा सामने आएगा सच। गोपाल जी, अरे साहब जेपीसी ने मांगा क्या था? गोपाल सर 1 सेकंड, 1 सेकंड मुझे दो प्लीज। बोलिए गोपाल सर, जेपीसी बोलिए, हमने वक्फ अमेंडमेंट में जो बहुत सारे चेंजेस थे उसमें हमने मांगा क्या था? कलेक्टर को पावर्स दीजिए, उनको रेवेन्यू समझता है, उसके अंदर 2 नॉन मुस्लिम यानी 2 हिंदुओं को सदस्य बनाइए, और आप लोग जो औरतों को घर में बटा के रखते हो, औरतों को भी वक्फ बोर्ड के अंदर मेंबर बनाओ। इसके अंदर इतना आपके धर्म को भ्रष्ट करने का काम हुआ किधर था? तो आपने इतना जेपीसी, इतना ये जो आपने हंगामा किया पार्लियामेंट में, ऐसा हमने थोड़ी ना आपका कोई जाति जमाती को आपने चेंज कर दिया था। सर आपका महिलाओं की तरफ वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं को लेने के लिए जो आपकी उदारता दिखाई दे रही है, मैं बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन यही बात अगर आपने जो कानून लाया था पार्लियामेंट में, उसको 10 साल के बाद आप महिलाओं को आरक्षण देंगे, जब सेंसेक्स होगा, जब रिवाइज कॉन्स्टिट्यूंसी होगी, तब जाके आप पहले ही महिला सशक्तिकरण का ढोल पीट रहे हो, तो ये क्या मतलब? आपको भी तो ठीक लगता है क्या? बताइए आप। अरे जब महिला सशक्तिकरण देना है तो पार्लियामेंट में लाइए ना।
देखो 10 गोपाल जी साल सुनिए 15 ना, साल से फर्स्ट सोनिया थिंग जी फर्स्ट, और कांग्रेस, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, 10-15 मोदी जी साल बोलते से मैं बहुत सोनिया छोटा जी आदमी और हूँ, मैं कांग्रेस, छोटी छोटी चेंजेस लाता हूँ। लेट गोपाल मी जी वन कंप्लीट, सेकंड लेट मी कंप्लीट, लेट मी कंप्लीट, लेट मी कंप्लीट, प्लीज। लेट मी ओके कंप्लीट। हाँ, बोलिए ओके, बोलिए। 10 साल से सोनिया जी और कांग्रेस पार्टी बार बार महिला रिजर्वेशन का असेंबली और पार्लियामेंट में बिल ला रही है। हमारा ओपन हमारा रोल है, उसमें कोई छिपा हुआ नहीं है। लेकिन आप कहाँ क्या कर रहे हो? आपने तो पूरा पार्लियामेंट इलेक्शन के पहले, लोकसभा पोल के पहले जैसे कि बताया कि हम महिलाओं का सशक्तिकरण कर रहे हैं, जब उसमें कुछ है ही नहीं। आप जब सेंसिस करोगे तब जाके वापस रिवाइज कॉन्स्टिट्यूंसी होगी, तब जाके महिलाओं का आरक्षण मिलेगा। ये कौन सा महिला सशक्तिकरण है भाई? जब 20 साल के बाद महिला सशक्तिकरण होगा तो क्या पता, जब महिलाओं के अत्याचार पे अगर महिलाओं पार्लियामेंट और असेंबली में जब तक नहीं आती तो आप किस प्रकार का महिला सशक्तिकरण करते हो? मतलब उसमें कुछ मीनिंग है क्या? मतलब क्या है? ये सब दिखावा नहीं तो और क्या है? महिला सशक्तिकरण का ओनली दिखावा है, कुछ नहीं है। और आप वंदन आपके नारी मतलब शक्ति आप- वंदन अधिनियम Can I is a come in farce. now? Yeah, Daruvala Sahab, Nari Shakti Vandan Adhiniyam was just a farce. That's what Gopal Tiwari ji saying. गोपाल तिवारी जी लेके आ रहे, वो बिल आपने लेके आए, इट्स अ फास्ट। 10 साल के बाद आप इंप्लीमेंट करने वाले हो, वो भी जाति जनगणना, जो राहुल गांधी जी बार बार करे, जाति जनगणना करो, जाति जनगणना करो, जो आप नहीं कर रहे हो। दारूवाला साहब, Exactly. Pradeep sir, answering to this question straightforward is when we are at least starting somewhere. हमने कहाँ से तो पहल शुरू की, पार्लियामेंट में बिल पास किया, president has given the nod, it has to test the waters of the Supreme Court, it will happen and you will be surprised it will come before we even realize it. Point number one. Point number two, Rajiv sir will agree with me if he allows me to just present myself over here. On the Waqf Amendment Bill, we had requested that 2 women from our community, from the Muslim community, also be made part of active politics. As to what is happening, so 1/3 of the land in this country is under the domain of the Waqf board. If women are not given participation, and if they do not know what is happening, and if we get them involved, it will be a good win-win situation. And why not take Hindus? Because in the Jijuri Mandir Trust, in the other Sai Baba Trust, where I have been told, there are Muslims also on part of the board. So if we take a Hindu over here, why should they have a problem? That's all I wanted to say, sir. But anyway, the hangama they created in the parliament, it had to go to JPC. Means it is that only a ruckus opposition विरोध के लिए But I tell you विरोध what, करने का अली दारवाला काम साहब, ये इंडिया अलायंस कर रही है। लेकिन अली दारवाला साहब, the entire narrative is right now with the India alliance. Very frankly speaking, अभी क्या है, पहले क्या होता था, मोदी जी कुछ बोलते थे, सारा देश खड़ा हो जाता था उनके लिए। अभी क्या हो रहा है, मोदी जी कुछ भी बोलते हैं, वेरी अनफॉर्चुनेटली सर, दुखद बात है आपके लिए, राहुल गांधी जी जो बोलते हैं आज की तारीख में लोग विश्वास कर रहे हैं, भले आप माने या ना माने। राहुल गांधी का नैरेटिव जो है आज की तारीख में माना जा रहा है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं साहब, आप इसको सीरियसली लीजिए सर, प्लीज आप इसको सीरियसली लीजिए। चुनाव के पहले भी, रिजल्ट आने के पहले भी लोकसभा में हम आपको कह रहे थे यहीं पर कि महाराष्ट्र में देखिए आपको तकलीफ होने वाली है, और यहां पर मैं फिर बोल रहा हूं सर, इसके बावजूद कि आपने बहुत बढ़िया स्कीम लाई है, लाडली बहन योजना जो है, लोगों के बैंक अकाउंट में पैसे भी आ गए हैं, उसके बावजूद जो ओबीसी वोट है, जो शेड्यूल कास्ट वोट है, जो शेड्यूल ट्राइब वोट है, जो मुस्लिम वोट है, वो आपके खिलाफ है सर। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, अनलेस एंड अनटिल यू वेक अप एंड डू समथिंग, you have to do something drastic. But anyway, that's my opinion. That's it. Pradeep ji. you know, Sonia Gandhi ji has penned an article. You know, she has penned an article, Darwala Sahab, and Sonia ji हमेशा नहीं करते. She has done it and she has criticized the Modi government. Sonia Gandhi ji ने कहा Modi favors big corporates. Modi सिर्फ काम कर रहे बड़े बड़े corporates के लिए, उनको गरीब downtrodden, unka koi, they don't care. Mr. Modi doesn't care for them. She says Modi has destroyed the small businesses. Small businesses, MSMEs total destroy kar diya hai. Even to extent that Bapu, Mahatma Gandhi ji ke khadi industry jo unhone apne dil se lagaya tha, which is something the whole world appreciates, usko bhi Modi sahab ne destroy kiya. Now that is something very serious coming, because you are always saying that
the Congress is following George Soros, Congress is following Hindenburg, but here Sonia Gandhi is saying something that is very बहुत सालों के बाद वो खुलकर आई है सामने. Modi ji is destroying the economy. Darwala sahab. इंक्लूडिंग द खादी ग्रामोद्योग. Yes. Darwala sahab, you want to speak? Regarding the Khadi Gram Udyog, I would like to make it very clear that Modi ji has made a skill development center where people are taught the art of making khadi by Charka, and it is marketed and it is there in all the handloom handicraft fairs. This is a government and there is a department working relentlessly for this department. It is just to make people sentiment like गांधी जी के सपने को मोदी जी ने कर दिया चूर चूर. ये जो एक नैरेटिव है ना सर, ये नैरेटिव नहीं चलेगा सर. खादी का जो वापर है, खादी का जो यूज है, जो अभी भी उतना ही जोर शोर और उतने ही पैशन से किया जाता है. और मोदी जी ने कोई भी ऐसी पहल नहीं की जहाँ पे खादी ग्राम उद्योग को बंद किया जाता. सबसे पहले ये जो उनका जो एक्विजिशन है इसको मैं खारिज करता हूँ. Secondly, coming back to Adani and Ambani once again, sir, let me tell you something. Pradeep sir, Rajiv sir, Adani and Ambani did not start their business 8-9 years back. They were even bigger, even larger, and they were even getting orders at the time of the Congress regime. Sir, ये लोग कुछ overnight कुछ businessmen नहीं बने sir. And let me tell you something. Whatever tenders they have got are the tenders floated, participated by everybody, and they are all transparent. Right. They're online. Let's It not is get into only that. the Indian Sir. investors, Ali it is the Darwala foreign sahab. sentiments who are attached to these big companies, just calling them names. Just imagine, there are lakhs Ali and Darwala lakhs of sahab, let's not investors get who into cannot that. play with their investment. Sir, let's not get into that. Ali Darwala साहब will be here all night. बहुत गोपाल- तकलीफ हो जाएगी. गोपाल एक जी। चीज खादी के बारे में सर Yes, प्रदीप sir. जी, एक छोटी सी चीज. Sir. गोपाल तिवारी जी, अभी प्रदीप जी आपने Sir, सवाल पूछे sir. और आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं. मैं आपको भी बता दूं, Yeah, अली yeah. दारूवाला साहब आपको भी बता दूं. नहीं खादी का जहां तक प्रश्न है सर, पूरी बात तो let me- मैं सुनिए. सर, इनका- खादी उद्योग का जहां तक प्रश्न है, 2013-2014 में खादी एंड विलेज इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स KVIC जिसको बोलते हैं, उसका टर्नओवर था 26,109.08 करोड़. In 23-24, you will be glad to know there is a jump of 314.79% and it has reached 1,08,297.68 crores. आज की तारीख Exactly. में 1,08,297.68 करोड़ है. अब आप बोले. Nearly 400% increase है. इसलिए दारूवाला साहब, I mean, गोपाल जी, Sonia Gandhi is speaking from a hat. So गोपाल Priyanka साहब Gandhi बोलिए. doesn't know the facts and figures. तो जॉर्ज सोरोस और हिंडनबर्ग ऐसे लोगों के साथ मिलकर राहुल जी, सोनिया जी, बीजेपी का आरोप है, trying to destabilize the economy and spreading lies about the economy. गोपाल तिवारी जी, Pradeep sir. हाँ बोलिए बोलिए. Sir, गोपाल allow तिवारी me जी for बोलने one दीजिए ना second. सर, प्लीज. अच्छा ये बोलिए सर, 1 सेकंड. let him complete. Let him. Ali जी बोलिए फिर. बोलिए मैं बोलिए बात बोलिए. या गोपाल जी, मैं आपके ऊपर, आपके पार्टी के ऊपर, इंडिया अलायंस के ऊपर, ये इतने बड़े चैनल के ऊपर एक खुला बार-बार आरोप इतना काफी बड़ा जिम्मेदारी चैनल से बोलते हैं, करता आपके हूँ. मुंह में घी शक्कर ये रहता जो जॉर्ज सोरेस है, ये जितने लोग हैं, ये जितने US पार्लियामेंट के लोग हैं, जो बांग्लादेश में हुआ है, ये जो हो रहा है, आप एक बात ध्यान से सुनिए. राहुल जी ये चाइना के कठपुतली बन चुके हैं. इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए वो एक मासूम का एक इस्तेमाल कर रहे हैं. राहुल गांधी जी को नहीं समझ रहा वो क्या कौन सी आग के साथ खेल रहे हैं. जो नेपाल में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, जो पाकिस्तान में हुआ, आपने खुद इमरान खान का स्टेटमेंट सुना है. जो देश सशक्तिकरण खुद के स्वयं बल के ऊपर बढ़ने की कोशिश करता है, वहां पे चाइना उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये डर्टी गटर पॉलिटिक्स करता है. इंडिया हैज रिजन फ्रॉम द डेब्रीज व्हाट कांग्रेस हैड लेफ्ट. आज Right, इंडिया now let's ask इंटरनेशनल Gopal मार्केट Tiwari के sir. अंदर उसकी यहाँ पर सर एक मान सम्मान है. डॉलर के अगेंस्ट रुपी को स्ट्रॉन्ग करने का पहल चला है. ये अमेरिका और चाइना से देखा नहीं जा रहा. ये जो इंडिया में हो रहा है ना सर, ये नैरेटिव मत चलाओ. ये जो 4 दिन की चांदनी है ना, जो कांग्रेस का लोग सुन रहे, राहुल गांधी की बहुत बात फैल रही है. राजीव जी को लगता है कि अभी कांग्रेस जीतेगा. बिल्कुल, अगर हम हारे भी
समझो अगर हम हारे भी तो ये जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी है, ये जो पंजाब में हुआ, ये जो आप कर रही है पार्टी, ये जो अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये अखिलेश यादव, इसको चाइना इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए ये सारा साजिश रचा जा रहा है। मैं भारतवासियों को आपके प्रेस्टिजियस चैनल से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ये फेक नैरेटिव के आप शिकार मत बनिए, इंडिया को डिस्टेबलाइज मत करिए। मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी ये देश को सशक्तिकरण और एक नंबर और गोपाल विश्व तिवारी गुरु जी। बनाए सिवा नहीं रहेगा। गोपाल तिवारी जी प्लीज। जॉर्ज सोरोस। गोपाल तिवारी जी बोलिए। सर, इट्स सो रिडिकुलस स्टेटमेंट अली दारूवाला Yes, जी जो बोल exactly, रहे हैं। exactly. You will सर say. सर It is सर सर ridiculous. सर सर लेट मी कंप्लीट नाउ, लेट मी कंप्लीट। आपने तो आपकी जो जलन है ना सोनिया जी, राहुल जी, कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस को जो देश में मैंडेट मिल रहा है उसके बारे में, वो India तो line. आपने निकाल दी। आपको उसके सिवा कुछ आता ही नहीं ना। आपको जलन जेलसी के सिवा आपका एजेंडा है नहीं। आपका जो फेल्यूर है, आप बता रहे हो चाइना का कठपुतली बन रहे, व्हाट नॉनसेंस। अरे कठपुतली तो आपके मोदी जी बने, आपकी जमीन छीन ली। अरुणाचल में जब जितने सवाल राहुल जी ने पार्लियामेंट में पूछने नहीं दे रहे आप। चाइना पे ऊपर डिबेट क्यों नहीं होने देते पार्लियामेंट में? क्यों आप डरते हो? आप तो बोलते हैं ना घुसा है, ना घुसा है। अरे व्हाट नॉनसेंस। जब आपके जयशंकर और राजनाथ सिंह पार्लियामेंट में एडमिट कर चुके हैं कि चाइना हमारे इसमें घुस चुकी है, अब फिंगर 4 टू फिंगर 8, फिंगर 8 4 टू फिंगर 8 का क्या हो गया? व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग। व्हाट मतलब आप मिसगाइड कर रहे हैं। बिल्कुल सही सही, ये ऐसे थोड़ी चलेगा। आप जो बोल रहे हैं अभी, और एक मुद्दे पे आता हूं। आप जो बोल रहे थे अडानी और अभी बिजनेस में नहीं आए, फॉर यूर काइंड इंफॉर्मेशन, अगर आपके नॉलेज में नहीं है तो कहीं सीख के आइए। अडानी जी 2014-15 में रिचेस्ट पर्सन कितने थे? 500-600 का नंबर था, और 5-10 साल में कितने रिचेस्ट पर्सन आ गए। अरे अडानी को कॉन्ट्रैक्ट कितने दिए? जो भी एयरपोर्ट है, लैंडलाइन है, रेलवे है, सब कुछ तो आप अडानी को सौंप रहे हैं। और व्हाट नॉनसेंस आप यू आर टेलिंग। ये सब क्या कह रहे हैं आप देखो, आप अंधा समर्थन कर रहे हैं आपका नेता का। और आप रही बात वक्फ बोर्ड और देवस्थान की, अरे तो 70 साल में देवस्थान की जमीन और गोल्ड पे हमारी वक्र दृष्टि नहीं पड़ी थी, जो आपकी मोदी सरकार की वक्र दृष्टि उस पर गिरी है। अरुण जेटली ने गोल्ड बॉन्ड क्यों लाए? तिरुपति देवस्थान और सब देवस्थान का गोल्ड किसने लिया? और वो गोल्ड बॉन्ड के इसके ऊपर हिंदू देवस्थानों का गोल्ड किसने लिया? आपकी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जो करना कर लो। ये चैनल पे क्या है, पृथ्वीराज चौहान जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ये सब भंडाफोड़ किया था, मैं साथ में बैठा था। अरे 2020 की बात कहता हूं, जब कोरोना में अनिल अंबानी को जब पैसे की जरूरत थी, यस बैंक जब डूब चुकी थी, 450 करोड़ सोमनाथ पुरी ट्रस्ट के निकाल के, देवस्थान के, हिंदू देवस्थान के ट्रस्ट के निकाल के यस बैंक में डाले थे आपने। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लेके सचिन सावंत हमारा महाराष्ट्र का स्पोक पर्सन और हम दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोला था ये बात। क्या किया आपने? अरे हिंदू देवस्थान का गोल्ड किसने यार गिरवी रखा है गोल्ड बॉन्ड के नाम के ऊपर? व्हाट नॉनसेंस। चोर तो चोर वापस ये कर रहे हो आप। शर्म आनी चाहिए आपको। चाइना पे सरेंडर कौन हुआ? झूले झूल रहे हैं, और आप बोलते हैं आपके पास सभी कुछ एजेंसियां है, और आप यहाँ पे चैनल पे बात करते हो, बजाय चैनल के बात करते पार्लियामेंट में ये डिस्कस होने दो, जो उसके ऊपर कार्रवाई करो। कुछ कार्रवाई तो कर नहीं रहे, ऐसे ही मतलब ये बातें कर रहे हैं, मतलब ये डजंट हैव एनी मीनिंग ना, बेसलेस बातें कर रहे हैं ये लोग। और क्या? तो आपके मुताबिक, जहां तक अडानी जी का प्रश्न है या अंबानी जी का प्रश्न है, इन सब लोगों की मदद कांग्रेस ने कभी नहीं की आपके मुताबिक? देखो सर, देखो एक लिमिट के ऊपर नहीं की। देखो एक समय जब कि नवरत्न कंपनियां खड़ी की थी, देश चलाने के लिए उद्योगपतियों की जरूरत होती है। जमनालाल बजाज जी का ब्लाइंड चेक बुक महात्मा गांधी जी के पास रहता था, लेकिन वो उनका आदर करते थे, देश के लिए पैसा उनका खर्च करता था, उद्योगपतियों के करता था।
और आज जीएसटी कमा कमा के सब कुछ जा रहा है, गरीब ब्रेड और रोटी और दही लस्सी पनीर बटर अरे इतना जान दो, हॉस्पिटल के बिल के ऊपर भी जीएसटी लगा रहे हैं आप। व्हाट नॉनसेंस, व्हाट शेमफुल थिंग। मेडिकल इंश्योरेंस सर मेडिकल इंश्योरेंस पे भी है जीएसटी, और सब जा रहा है अडानी अंबानी के पास। ये क्या मतलब है? आप बहस क्यों नहीं कराते हो? अगर आप में इतना दम है तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बातें क्यों नहीं बताते? आपके पीएम और डिफेंस मिनिस्टर कौन सी चाल बता रहे हो, कौन सी कठपुतली बोल रहे थे? ये कौन है? गोपाल जी, आज प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कह रहे हैं कि आज तरक्की डिजिटल रेवोल्यूशन हम इस कदर बढ़ा दिया है कि फार्मर्स आर ट्रांजैक्टिंग ऑन द स्मार्टफोन। पीएम किसान योजना में द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर पूरे दुनिया में अगर है वो पीएम किसान योजना है। 11 करोड़ फार्मर्स को 17 इंस्टॉलमेंट 3.24 लाख करोड़ 5 लाख सर्विस टेंडर्स। तो एक एक आंकड़ा जो मोदी साहब दे रहे, इट इज सपोर्टेड बाय यूएन, जो यूएन यूनाइटेड नेशंस चीफ जिस प्रकार से कर रहा है कि जिस प्रकार से 80 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से मोदी साहब ने बाहर निकाला, 25 करोड़ को आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, यूएन प्रेसिडेंट यूनाइटेड नेशंस का अध्यक्ष बोल रहे हैं। और जिस प्रकार से वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, तो क्या देश के अंदर देश के बाहर गुणगान हो रहा है मोदी जी का, बीजेपी का कहना है, तो आप इसको नकार सकते हो सर गोपाल जी? सर ये सिर्फ बीजेपी का कहना है। Why they are not able to convince the farmers? Why they are not able to convince the farmers? ये बात जो किसानों को क्यों नहीं समझा पा रहे? किसानों को दिल्ली आने के लिए रास्ते में खिले डाल रहे हैं और उनको ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? ये तो आप जो दुगनी प्राइस देने वाले थे वो क्यों नहीं दे पा रहे? ये सब बातें कोई मतलब नहीं आती। बीजेपी कह रही है और मोदी जी कह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो वास्तवता है और वो लोगों को जच रही है बातें, ये नहीं है। उनको कहने से क्या मतलब है? इनको जानिए, सत्य सुनिए अली दरवाला साहब। नो, जिस प्रकार से ना व्हाट दे आर सेइंग आल्सो, दरवाला साहब आपने जब मोदी साहब का रिपोर्ट कार्ड है, पीएम किसान 80 करोड़ रेशन फ्री, आवास योजना 4 करोड़, उज्ज्वला 12 करोड़, आयुष्मान 13 करोड़, नल से जल 15 करोड़, हर घर शौचालय करीबन 15 करोड़, ये सब आंकड़े हैं। मगर जो बेसिक जो गोपाल जी पूछ रहे हैं, काले धन, पेट्रोल 50 रुपया था जब आप टेक ओवर किया, रूपी वर्सेस डॉलर क्या हाल था जब आपने टेक ओवर किया, 2 करोड़ जॉब्स, तो दरवाजा साहब वहां हाउ कैन यू रिस्पॉन्ड? आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे इसमें? एक तरफ मोदी जी की रिपोर्ट कार्ड है, आप पूछ रहे हो प्रदीप, तो पार्लियामेंट में ये डिस्कस क्यों नहीं कर रहे भाई? ये एजेंडा क्यों नहीं पार्लियामेंट में ये बात भी नहीं करने देते? अगर हो दूध का दूध पानी का पानी होने तो मुंह पे जो रिकॉर्ड है आप वेबसाइट पे डालिए ना, कौन से टॉयलेट कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन से तहसील में कितने टॉयलेट बनाए, हमें जानना चाहते हैं। हमारे पेपर में एडवर्टाइज में एक जगह 7 करोड़ टॉयलेट, दूसरी जगह 7.5 करोड़ टॉयलेट है, 50 लाख का फर्क। व्हाट नॉनसेंस! अरे ये अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री बाहर जाके बोलते हैं हमने घर घर बिजली दी और टॉयलेट दिया, तो कौन सी इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आएगी? ये तो कॉमन सेंस है। कोई देश के प्रधानमंत्री बाहर जाके बोलता है क्या? 2014 तक हमारी देश निराशा के खाई में था और आत्मविश्वास के अभाव में था। अरे व्हाट ना से ये क्या बात है? और दूसरा जो मोदी साहब रिपोर्ट कार्ड है, बोले 5th बिगेस्ट इकोनॉमी, डिजिटल रेवोल्यूशन, 45% रियल टाइम ट्रांजैक्शन पूरे दुनिया में भारत में हो रहा है। आर्टिकल 370 एब्रोगेशन, राम टेम्पल, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक, ट्रिपल तलाक, 1 रैंक 1 पेंशन, ये सब नारी शक्ति वंदन, ये रिपोर्ट कार्ड बहुत मोदी साहब के हैं, वो बार बार बोलते रहते हैं। क्या इसमें आपको डाउट है तिवारी साहब? सर ये रिपोर्ट कार्ड ही हैज बीन टेलिंग ऑल दैट सेम फॉर लास्ट 1.5 ईयर और 2 ईयर। ये 1-2 साल से ये सभी बातें बोल रहे हैं। उसके बाद भी लोकसभा चुनाव हुआ और आज भी महाराष्ट्र में चुनाव लेने की इनकी हिम्मत नहीं है सर। इन्होंने तो चुनाव आयोग को कठपुतली बना के रखा है। पूरी दुनिया और पूरा महाराष्ट्र की जनता देख रही है। ये कौन सी तरीका है? तो क्यों नहीं इलेक्शन फेस कर रहे हैं? ये लाडली बहना 10 साल के बाद इनको याद आई लाडली बहनाओं की, जब कांग्रेस कर्नाटक में और हम
बहना, अरे हमारे जो अंतुले साहब थे ना, संजय गांधी निराधार योजना लाई महाराष्ट्र में 85-86 में, जब जो भी विधवा बहन है उसको अपने बच्चों को परवरिश के लिए उसको 1000-1500 रुपए देते हैं हम। जो भी ओल्ड लेडी है जो निराधार है, ये हम करके बता रहे, और ये ऐसे गोपाल तिवारी जी, हवा में बातें नहीं कर रहे। और ये आवास योजना प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं तो 2022 का, ये कब बोले 2017 का वीडियो है। अभी भी मैं बताना चाहता हूं आपको, वो जो मोदी जी का वीडियो 2017 में बोल रहे थे 2022 तक हर घर में नल, हर नल में जल और हर एक को मकान। और व्हाट नॉनसेंस, 2-2.5 लाख रुपया सिर्फ आप आवास योजना का देते हो, जो उसको जीएसटी लगता है, टैक्स में आप कमा रहे हो, और उसको 2.5 लाख देते हो। वो घर अगर गोपाल तिवारी जी, एक सेकंड, गोपाल तिवारी जी, देखो सुनो लेट में 30-40 लाख का फ्लैट लेता है, 50 लाख का फ्लैट लेता है, 60 लाख का फ्लैट देता है, और प्राइम मिनिस्टर आवास योजना से उसको 2,65,000 सिर्फ मात्र सब्सिडी मिलती है। तो आप डंका पीटते हो आयुष्मान आवास योजना का। अरे ये क्या है? वो ये बजट का अली दारूवाला साहब, ये गोपाल तिवारी साहब इज गोइंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस ऑफ द बीजेपी, कि भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने बहुत प्रोमिसेस दिए और उनको फुलफिल नहीं किया। जो प्रदीप जी अभी बोल रहे थे 2 करोड़ नौकरियां और 15 लाख रुपए और वो वगैरह वगैरह, वो भी सब छोड़िए एक सेकंड के लिए। अली दारूवाला साहब, व्हाई आरंट वी होल्डिंग द महाराष्ट्र इलेक्शंस? हरियाणा की इलेक्शंस के साथ होनी चाहिए, दोनों इकट्ठी हुई थी लास्ट टाइम भी। बिल्कुल तो इस बार क्या हुआ सर अली दारूवाला साहब? Why are we not holding the Haryana and Maharashtra elections together? I'll tell you, sir. After Diwali, you can be rest assured. Why after Diwali? Why after Diwali? Why after Diwali? आप लाडली बहना के कारण रिश्वत देना चाहते हो महिलाओं को, क्योंकि महाराष्ट्र से जो कुछ लूट के गुजरात में जाए करके। Why after Diwali? कोई आप जस्टिफाई करते हो? कमाल है आप। गोपाल जी सुनिए ना मेरी बात। 1 second, प्रदीप जी, राजीव सर, just 1 second, let me finish this thing. He said रिश्वत, अगर हम हमारी बहना को हर महीना 1500 रुपए देना चाहते हैं तो आप उसे रिश्वत कहना चाहते। और आपने कहा था माननीय वंदनीय अंतुले जी ने जब कोई यहाँ पे विधवा को दिया था तो वो मदद, आपने दिया तो मदद और हमने दिया तो रिश्वत। सर आप चुनाव को ध्यान में रख के दे रहे हैं ना सर? सर सुनो ना, हम चुनाव को ध्यान में रख के दे रहे हैं। आप चुनाव को ध्यान में रख के दे रहे हैं, आप चुनाव के मुंह पे दे रहे हैं, आप चुनाव को ध्यान में रख के दे रहे हैं। आप ये बात अगर 2014 या 19 में करते तो हम सैल्यूट करते थे आपको। ये जब 14 जब मोदी जी आए, 19 में आए तो करते थे ना, हम भी तालियां बजाते थे। आप चुनाव का मौका देख के दे रहे हो, और पार्लियामेंट में जो आपको हार खानी पड़ी तब दे रहे हो आप। ये मतलब नहीं है, आप तब तक फुलफिल करना चाहते हो और बाद में इलेक्शन लेना चाहते हो। एक मिनट, राजकारण के लिए राजकारण मत करिए गोपाल तिवारी जी। यहाँ पे बहना वो आपकी हमारी बीजेपी कर रही है, बीजेपी की कांग्रेस की नहीं है सर। एक मिनट सुनिए ना प्लीज। हाईकोर्ट ने कहा लोगों का जो काम हुआ है उसका पेमेंट नहीं जा रहा है। हाईकोर्ट ने कल कहा कि आप हम योजना बंद करेंगे। अरे जिसको पैसा देना है उसको पैसा नहीं दे रहा है, वो काम ठप हो रहा है। आप कल परसों हाईकोर्ट में ऑर्डर किया है कि आप लाडली बहन योजना, हम जिसको पैसा देना चाहिए था उसको नहीं दे रहे हो, जिसने काम किया उसको पेमेंट नहीं दे रहे हो। व्हाट नॉनसेंस। और आप कमाल है आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर का सेक्रेटरी ने उसको अपोज किया था, आप पॉलिटिकल प्रेशर करके वो अपोज शांत कर रहे हो। ये क्या बात है? ये मतलब दारूवाला साहब, एक प्रॉब्लम है कि महायुति के अंदर सब लोग आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हैं? ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ जाकर देश के हित में, हमारे नागरिकों के हित में लिया जाता है। आप ये बात को मानेंगे, इंदिरा गांधी लेकिन वो प्रैक्टिकली प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन का सब कुछ नहीं माना। यहाँ पे नागरिकों की हित की बात आती है तो ब्यूरोक्रेसी को बाजू में रख के यहाँ पे फाइनेंस को अरेंज करके ये पैसे गरीबों में बांटे जाते। सर मुझे एक बात बोलिए तिवारी जी, 1 सेकंड बात करिए। अगर ये स्कीम इतना खराब है, तिवारी सर 1 सेकंड,
अगर हाई कोर्ट ने हमारे को अगर ये स्कीम के अगेंस्ट अगर हमें खड़काया है, तो गोपाल तिवारी जी अभी आप कह रहे हो ना इलेक्शन, अभी नवंबर दिसंबर में इलेक्शन है सर, अगर ये स्कीम इतनी खराब है तो आप एक आपकी ये प्रेस्टीजियस चैनल पे बोल दीजिए ना, आप आते के साथ, पावर में आते के साथ लाडली बहना योजना को आप बंद करेंगे, क्योंकि ये फेक स्कीम है, ये अरे एकदम सर, बोगस स्कीम है, ये स्कीम से महाराष्ट्र बैंकरप्ट होने वाला है। आप अनाउंस करिए ना फिर अभी। सर हमने तो कर्नाटक में 1 साल का कंटिन्यू 1 किया सर लाख आपने का कर्नाटक में। टारगेट रखा है। गोपाल सर, हमारे आपने discontinue मैनिफेस्टो किया। में आपके प्राइम मिनिस्टर बोल रहे थे रेवड़िया बांटना बंद करो। रेवड़िया किसको कहते हैं? आपके पीएम मोदी जी कहते थे रेवड़िया बांटना बंद करो करके। अगर हम मुफ्त में बिजली देते हैं, आम आदमी सरकार कर्नाटक में हम कुछ दे रहे, तो आपके प्राइम मिनिस्टर का पेट दर्द हो रहा था। अभी उनको चारा नहीं है, मुंह की हार खानी पड़ी। पार्लियामेंट लोकसभा में मुंह की हार खानी पड़ी। प्रैग्मेटिकली सुनिए, शांति से सुनिए। एजेंडा में क्या है? कर्नाटक का आपके गवर्नमेंट मैनिफेस्टो में लॉस नहीं में है। गया, आपके मैनिफेस्टो एमएसपी में लाइट नहीं है। फोकट दे के आपके एमएसपी लॉस में गई। आपको रेवड़िया नहीं, आप तो एक झटके में फटाफट 8,500 बांट रहे थे, आपके पास का प्रोविजन ही नहीं था पैसे का। हमने 46,000 करोड़ लाडली बहना योजना का प्रोविजन करके ये स्कीम को अनाउंस किया। आप कहें ना, आप कहो ना सर, अगर आप पावर में नहीं, हम क्यों कहेंगे? हम तो आगे जाते कहते हैं कि हम उसका प्रॉपर प्लान बनाएंगे। हमारे मैनिफेस्टो में 1 लाख रुपया गरीब महिलाओं को। आपको तो अभी ऐसा हो गया है कि आखिरी में जो भी आपको सोच रहा है, कितना फेक है सर। आपको मैनिफेस्टो में नई बात है, लास्ट मिनट का आप उसका एडवांटेज, जो सत्ता है उसका एडवांटेज लेके ये कर रहे हैं। बिल्कुल पार्लियामेंट में गोपाल तिवारी साहब, जो अली दारूवाला साहब ने आपसे पूछा है उसका जवाब तो दे दीजिए ना सर। नहीं क्या देंगे सर, मान लीजिए क्या? महाविकास आघाड़ी की सरकार आती है तो क्या लाडली बहना स्कीम आप जारी रखेंगे या उसको कैंसिल करेंगे? ये बताइए ना सर। नहीं सर, हम महिलाओं के लिए इससे भी बेहतर हमारा प्लान रहेगा, इससे भी बेहतर प्लान रहेगा। ये जो अभी देखो, ये उथल पुथल में इनको डर लगा है, तभी महाराष्ट्र के इलेक्शन नहीं ले रहे। और अभी जो चाहे मांगे, वो जो चाहे अपना टेम्पटेशन दे रहा है ये लोग। और हमारा तो मैनिफेस्टो में, इनके कहा मैनिफेस्टो में? सो अली दारूवाला साहब, आर यू बाइंग लागू कर दिया। सो दारूवाला साहब, क्या आप वोट खरीद रहे हैं? लागू कर दिया तो अभी भीड़ लगी है बैंक में, गोपाल जी जाके हार के देखिए, डर से ऑटो की भीड़ लगी है सर। नौकरी काम भी नहीं आ रही है, सब लोग वो स्कीम को दर्ज कराने के लिए छुट्टी पर 1 महीने से। हार के डर से आप लागू कर रहे हो और कुछ नहीं है, आपको हार का डर लेकिन है। लागू किया तो सही। महाराष्ट्र में इलेक्शन नहीं ले सर, लोगों को पैसा तो मिला, गरीबों का तो फायदा हुआ ना। हाँ सर, लोगों को पैसा तो मिला। गोपाल तिवारी जी, महिलाओं के बैंक खाते में पैसा गया है, इसमें कोई दो राय अरे नहीं। भाई, उसको बैंक का कई महिलाओं को, अरे वो जो गरीब महिला है, पिछले साल 2 साल में जीएसटी की तरफ से उसकी जेब से पैसे निकाल रहे हो, जो आज तक 70 साल में कभी नहीं निकाला था कांग्रेस ने। अरे बिलो पाउली ने गरीब महिला सब लोग दूध, ब्रेड, पनीर, दही, मक्खन, अरे शर्म आनी चाहिए। इसके ऊपर जीएसटी लगा रहे हो, अनाज के ऊपर जीएसटी लगा रहे हो। कई 70 साल में लगा था क्या? अरे आप हॉस्पिटल में ऊपर जीएसटी लगा रहे हो। अरे कमाल है आपका। अगर कोई अभी भी जीएसटी के लिए प्रोटेस्ट किया, तब एलआईसी का जीएसटी अभी कम किया। एलआईसी का जीएसटी कांग्रेस ने प्रोटेस्ट करने के बाद कम किया। आप तो उसका खुद चूसने लगे हो गरीबों का। और जनमन घर भी हो, चलते चलते एक सवाल, अरे भाई चलते एक सवाल आप दोनों से। टैक्स टेररिज्म, आपके मोदी सरकार का टैक्स टेररिज्म है। उतना टैक्स टेररिज्म आज के 70 साल में कभी नहीं था। गोपाल तिवारी जी, इसके ऊपर बातचीत होती रहेगी। गोपाल तिवारी जी, इसके ऊपर बातचीत होती रहेगी। आप दोनों पूना शहर से हैं। अभी इस वक्त क्या हाल है सर वहां पे? अली दारूवाला साहब, हाउ आर थिंग्स इन पुणे राइट नाउ? बिकॉज वी बीन टोल्ड, वी गेटिंग फुटेज ऑफ पुणे अंडर वाटर, सारा पानी भरा हुआ है, हर जगह हालत खराब है।
अली दारूवाला साहब, पहले आप, क्या हाल है अभी पुणे में सर? एग्जैक्टली बहुत खराब हालत है, बहुत खराब। बिल्कुल पानी गिर रहा है 2 दिन से, यहाँ पे बहुत अच्छी बारिश है, मगर ये सोशल मीडिया इतना हाइप इतना ज्यादा करता है कि अब बाढ़ आ गई, रास्ते बह गए, यार लोग डूब गए और गाड़ी बह के चली गई। ऐसा पुणे में कुछ नहीं हो रहा है, ये रूटीन बारिश है। और यहाँ पर इतना बारिश हम तो बचपन से देखते हैं। इनफैक्ट ये स्कैटर्ड रेन 10 दिन के बाद में आया है। ये 10 दिन का जो ब्रेक है, ये जो बारिश आया, ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा है। आने वाला इलेक्शन बहुत अच्छा होएगा। फार्मर्स के पास पैसे आ रहे, गरीबों के पास पैसे आ रहे, और भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के अंदर गोपाल तिवारी सत्ता जी, स्थापना पुणे करने जा में रही बारिश है। का हाल क्या है सर? पानी सर, इनको एक हाथ सत्ता थी, स्मार्ट सिटी का तो बिल्कुल ये हो गया, कुछ नहीं कर पाए। और महाराष्ट्र में राज्य सरकार, केंद्र सरकार और पुणे में पूरी मेजोरिटी थी। जो जायका प्रकल्प है मुठा नदी का, उसका पैसा खर्च हुआ है, कहीं कुछ नहीं हो पाया। यहाँ पे स्ट्रॉम वाटर ड्रेन है, उसमें सुनो, स्ट्रॉम वाटर ड्रेन जो लाइन है उसमें केबल डाले गए, कुछ नहीं किया। हमारे मुरली मोहोल जी ने उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए कहा था। मैं अप्रिशिएट करता हूं उनका। Right, this will go on for too long, but for one final question, gentlemen. Sir, we heard it. गोपाल तिवारी जी, अली दारूवाला साहब, जो प्रदीप जी ने आपसे सवाल पूछा था वो खो गया। लेट मी रिपीट दिस। प्रदीप नाम्बियार जी ने आपसे सवाल पूछा था अली दारूवाला साहब कि महायुति के लोग जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार हमला क्यों कर रहे हैं? Why is Ajit Dada Pawar being welcomed with black flags by BJP workers? भारतीय जनता पार्टी के वर्कर गांव खेड़े में अजीत दादा पवार का स्वागत काले झंडों से क्यों कर रहे हैं? और वो रामदास कदम और जो रविंद्र चौहान जी एक दूसरे को ऐसे गाली दे रहे, कभी सुना ही नहीं था। थोबड़े मारना, थोबड़ा फोड़ देंगे, ऐसे 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 बात। दारूवाला साहब, What is going on here, sir? पार्लियामेंट्री कैसे लोग देख रहे हैं, कैसे करोगे? दारूवाला साहब प्लीज बोलिए सर। Definitely, I don't know. These are some local issues, and this may be some old enmities that need to be addressed. But on the higher ground, ये जो ट्रिपल इंजन सरकार है, अजीत दादा पवार, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, ये इतने ताकत से, इतने मजबूती से महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं। I can assure you, sir, we are going to win this election. Murli Anna Mohor is trying very hard in Pune to bring normalcy back. We agree that there has been very heavy rains, roads have been uprooted. They will start, the repair work is already started. Let me assure you, it takes time. Nevertheless, effort, whatever the government is doing is falling short because of the immense population and the pressure on the administration. We need to work more. And besides, beyond politics, we have lots of NGOs and good citizens. Beyond politics, they are coming ahead and they are helping each other. And this is how ये जो इंडिया जो चला है ना सर, कोविड में से इंडिया जो इतना जल्दी बाहर निकला ना, ये हमारी जन भागीदारी की वजह से। That is what I'd like to say. Thank you so much, gentlemen. Thank you very much. अली दारूवाला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गोपाल तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय माता जी, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम। Thank you. But that was nice. Yes. पुणे के पूरे हाल मालूम पड़ा सर। And not only that, the fact is that the tensions within the MBA, within the Mahayuti, that is the NDA, वो सब बाहर आ रही हैं अभी, पर तकलीफ हो रही है बड़े लोगों को, और उसको अगर ये कंट्रोल नहीं करते तो बहुत तकलीफ होने वाली है। The language, रविंद्र चौहान जी saying that हम राम कदम के थोबड़ा फोड़ देंगे, इन्हें मार मार के थोबड़ा फोड़ देंगे। I mean the language, थोबड़ा, चेहरा भी नहीं बोले, थोबड़ा बोले। But Ram Kadam साहब can be very provocative also, ऐसी बात नहीं। No, both are provocative. How can you be, you are part of the Mahayuti and you are saying that he should resign, he should be sacked, Ravindra Chauhan should be sacked. The fact is also the Mumbai-Goa highway is extremely bad. The roads are horrible, bad. Why can't the government really do something about it? And we've been talking about that for instance so long. And मन से आंदोलन किए, उसके बाद कितने आंदोलन हो गए, अब तक वही हालत है। And the rains, it has become more bad, it's awful. So criticism, महायुति के अंदर बैठ के बात कर सकते थे, बट बाहर मीडिया में चिल्ला रहे एक दूसरे को। And Ajit Pawar ji, जैसे we are always discussing black flags creating him everywhere.
जी. And And by the way, it is not, we are not talking about Ram Kadam, we are talking about Ramdas Kadam, right? It's yeah, Ramdas Kadam. Ramdas Kadam versus Yes, yes. Ravindra Yes, yes. Chauhan. And, Ravindra Chauhan. Ram Kadam is from the BJP, Ramdas- who also Ramdas is a Kadam. very provocative guy, by the way. Hey, वो ऐसा नहीं है कि वो कम प्रोवोकेटिव हैं, लेकिन वो भी बिल्कुल वैसे ही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है. लेकिन प्रदीप जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है कि जहाँ तक कि कैलकाटा का प्रश्न है, अगर कैलकाटा रेप केस के बारे में अगर अब हम लोग बात करें, इसमें सबसे बड़ी बात यह आती है कि इसमें गलती जो है, आप अगर इंसिडेंट को थोड़ी देर के लिए साइड में रखें, गलती जो है वो स्थानीय प्रशासन की है, यानी ममता बनर्जी की सरकार की है. उनको क्या जरूरत पड़ी थी 4 घंटे के भीतर उसी प्रिंसिपल को किसी और जगह पर प्रिंसिपल बनाने की? नंबर That's 1. absolutely नंबर 2, unjustifiable. वहां की जो पुलिस थी, अब मैं रेफरेंस देख रहा हूं, उन्होंने एक्चुअली पहले दिन आकर के ये क्यों कह दिया कि लगता है सुसाइड है? व्हाट फॉर? अरे भाई, वो सीधा बोल सकते थे ना कि एज फार एज वी आर कंसर्न, वी आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर. Yes, that's हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं. तो आई डोंट अंडरस्टैंड. And the principal in question should have actually been placed under suspension or under inquiry. वो You- छुट्टी you में don't भेज try- सकते थे ना. Yes, They could have yes. sent You him on can't- holiday. You can't send him to a different college and allow him to function out there. सीधा उनको छुट्टी पे भेज देते. भाई आप थोड़ी देर के लिए छुट्टी पे It's जाइए. a heinous crime that has taken place in, Yes. in a particular institution in which Most he is the important. principal. Most important. And he's supposed to safeguard and have policies of which safeguard the institution in place. And then suddenly you find that he's being out from there. I he's am being sure, welcomed. Pradeep ji, if a person is not from the Trinamool Congress, even the worst opponent of the BJP will not side with Mamata Banerjee's TMC on this one. It is not possible. सीधी सादी बात है. I mean, what are you Nobody, doing? in fact, ये क्या कर रहे हैं? talk about any normal person who is not connected to any political party or ideologies. They say what's happening is wrong. I mean, they can see, they can feel something wrong happening. As you said, ये in सबके some- सामने है. ये Yes, क्या yes. है मतलब? ये ऐसे नहीं चलता है. This is not the way. And one did not expect this from Mamata Banerjee. Mamata Banerjee is the lady. She herself has struggled against the worst possible odds as a woman, and we thought she would stand by that girl who is just, she's been murdered in the most brutal fashion possible. We all thought that she would stand by her, and whoever would be the perpetrator would have been picked up by now. They have picked up one sorry looking character who I don't know who that person is. I don't think. And the point is, a chief minister taking out a Morsha against whom? I don't know. Against the CBI. CPI. Now, how can you, these things don't match up, like we're talking the same thing, Fadnavis taking a Morsha in Badlapur incident. किसके खिलाफ लेके जाएंगे भाई? आप क्यों लेके जाएंगे मोर्चा? जी. You need, somewhere people have gone directionless. I mean, the vision problem है या direction का problem है या ethics का problem है. Now these things, or people are confused. Are the leaders confused? What's happening? प्रदीप जी, मेरा ये कहना है कि भले जो मर्जी इसमें शरीक हो, जो मर्जी इन्वॉल्व हो, बड़े से बड़ा ही शख्स क्यों ना हो, जिसके बच्चे इसमें इन्वॉल्व थे, या कोई ये ड्रग रिंग था, या कोई गैंगस्टर थे, या कोई भी थे, सबसे पहला काम ये करना चाहिए, उठा करके सबको जेल में डालिए and ask for the death penalty. That is number one. Number two, a request to all the mainstream channels. We are nobody actually to request all the mainstream channels. बहुत बड़े बड़े लोग हैं. But the pornographic detail in which the deceased girl's post-mortem report has been discussed is terrible. You cannot do that. You cannot do that. Leave her with some dignity. Leave her with some dignity. Suffice it to say that there are too many contradictions between the post-mortem report and what the police initially said. That's more than enough. Why do you need to discuss every body part, every so on and so And forth? how much is quantity is there in where and what, and how it has been done? And That is disgusting, very frankly speaking. What has happened to these people? इनको हो क्या गया है? मेरी समझ के बाहर है. क्या कर रहे हैं आप? किसी की बेटी है वो यार. उसके माँ बाप के मतलब दिलों की बात I cannot even imagine what they would be feeling right now. And these people are discussing her body parts in this manner. I mean, in any event, we will talk about that a little bit later. इस वक्त हमारे साथ द्विवेदी जी हैं, संजय द्विवेदी जी.